Well, hello. Here we are with Isaiah again, and today we're going to have a look at Isaiah chapter 7 and chapter 8, which include two prophecies in Isaiah that have been helpful as Christians have sought to understand who Jesus is. But in both cases, they've got a background in what Isaiah is saying in God's name to people in his day. And that's true about Isaiah chapter 7, where eventually there is the promise about a girl who's not married, who's a virgin, who's going to have a baby. But the background is in a political crisis of the day, and so I'll read the earlier part of Isaiah chapter 7 first. आज फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हम यशाया 7 और यशाया 8 पर अध्ययन करने वाले हैं। यशाया 7 और यशाया 8 हमारे समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों अध्यायों को समझने के बाद हम समझे कि वहां पर दो यशाया की भविष्यवाणियां लिखी गई है, जो हमें यह समझने के लिए मदद करती है कि आने वाला मसीहा, जो यीशु मसीह आने वाला है, उसका वर्णन या फिर उसको हम कैसे पुराने नियम में समझ सकते हैं। परंतु उसके साथ साथ यशाया 7 और यशाया 8 ये भी दो भविष्यवाणियां हैं कि किस प्रकार परमेश्वर यहोवा वो इस यशाया के द्वारा इजराइल के लोगों के साथ बात करना चाह रहा था। यशाया 7 की पहले भविष्यवाणी देखेंगे, जहां यशाया 7 में फिर से एक बार एक कुंवारी स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है, उसको हम आगे अभी देखेंगे। In the days of Ahaz, son of Jotham, son of Uzziah, king of Judah, Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, went up to Jerusalem for a battle against it, but they couldn't do battle against it. यह उल्लेख उस समय का है जब उजिया का पोता योथाम के पुत्र यहूदिया के राजा आहाज, आराम के राजा रेजिन और रेमालिया के पुत्र इस्राएल के राजा पेका ने यरूशलेम पर हमला किया और हार गए। So it had been reported to David's household, Syria has lent on Ephraim, and his heart and his people's heart shook like the trees in a forest shaking before the wind. और वहां पर जब दाविद के घराने को यह पता चला कि आराम और एफ्राहिम एकजुट हो गए हैं, तो उनके लोग आंधी से हिलते हुए वन वृक्षों के समान डर से कांपने लगे। Yahweh said to Isaiah, "Go out, will you, to meet Ahaz, you and remains will return, your son, at the end of the conduit of the upper pool, at the launderer's field." और फिर याहवे ने यशाया से कहा कि तुम्हें और तुम्हारे पुत्र शार याशूब को आहाज से मिलने राजमार्ग के लगे धोबी खेत में ऊपरी कुंड के पास पहुंचना है और उनसे यह कहना है कि Say to him, "Take care and be calm. Don't be afraid. Your heart is not to falter on account of these two stumps of smoking firewood, because of the angry burning of Rezin and Syria and the son of Remaliah." और उनसे कहना कि आराम के राजा रेजिन और रमालिया के पुत्र के क्रोध के कारण जो जलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, सावधान और शांत बने रहना, भयभीत न होना और नहीं घबराना। Because Syria has planned evil against you with Ephraim and the son of Remaliah, saying, "We will go up against Judah and terrify it and break it open for ourselves and enthrone as king within it the son of Tabil." क्योंकि आराम के राजा रमालिया के पुत्र तथा एफ्राइम ने तुम्हारे विरुद्ध यह कहते हुए नई चाल चली है, आओ हम यहूदिया पर आक्रमण कर उसे मार दे और ताबील के पुत्र को उसका राजा बना दे। Because they have said this, my Lord Yahweh has said this, it won't come about, it won't happen. और इसीलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा कि उनकी यह चाल सफल न होगी, वह कदापि सफल न होगी। Because the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. और क्योंकि आराम का सिर दमश्कस है और दमश्कस का रेजिन। Within yet 65 years, Ephraim will shatter from being a people. आगामी 65 वर्षों के अंदर में एफ्राहिम का ऐसा नष्ट कर दिया जाएगा। The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. और इफ्राइम का सिर शमरोन है और शमरोन का सिर रेमालिया का पुत्र है। If you don't stand firm in trust,
you won't stand firm at all. यदि तुम विश्वास नहीं करोगे और स्थिर नहीं खड़े रहोगे तो तुम स्थिर ही नहीं खड़े रह पाओगे। This story about Isaiah and Ahaz started with something like a news headline. The और first sentence समाचार के कोई शीर्षक के तौर पे हम यहाँ पे यशाया और ये आहाज की कहानी शुरू होते हुए देखते हैं। The first sentence summarized the story before the main part gives the details. और पहले ही वाक्य में पूरी कहानी को संक्षिप्त में बता दिया गया है। The detailed story refers to Syria and Ephraim, which makes clear that the headline's reference to Israel means the northern kingdom, which can also be less confusingly referred to as Ephraim. और यह कहानी सीरिया और एफ्राइम के विषय में है और इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर समाचार इजराइल के बारे में है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तरी राज्य जिसे इजराइल या फिर एफ्राइम दोनों कहा जाता है। So often when Isaiah refers to Israel, he means the northern kingdom, Ephraim. और काफी बार जब भी यशाया जो है इफ्राइम का नाम लेता है उसका मतलब है कि वो उत्तरी राज्य इजराइल की बात कर रहा है वहां पर। The geographical position of Ephraim made Ephraim more vulnerable to Assyrian interest in extending its control to the countries towards the Mediterranean. और इफ्राइम का जो भौगोलिक स्थिति थी जहां पर वो स्थित था उसकी वजह से उसे काफी बार अश्शूरियों के हाथों में मेडिटेरेनियन विस्तार जो है वहां पर प्रवेश करने के लिए उसका एक जरिया बना दिया था। So Syria and Ephraim together are intent on resisting Assyria's expansion of its empire. और यहाँ पे आराम और इफ्राइम जो है दोनों अश्शूरियों को रोकना चाहते थे। They want Judah to join them, but geography makes Judah less interested in taking on the superpower. इसीलिए वे दोनों राज्य यहूदा के से मदद मांगने गए थे कि वो भी उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन फिर से एक बार यहूदा की भौगोलिक परिस्थिति की वजह से उसे अश्शूरियों को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। So Syria and Ephraim are seeking to lean on Judah and are prepared to force a regime change there to put on the throne someone more amenable to their policies. और इसीलिए एफ्राइम और आराम जो है वो दोनों साथ मिलकर यहूदा के ऊपर चढ़ाई करना चाहते थे, उन्हें हराना चाहते थे और फिर ये सब चाहते थे कि उनकी पसंद का कोई राजा वहां पर फिर यहूदा में राजा बने ताकि उनकी कही गई बातें वो माने। Isaiah doesn't draw attention to the horrifying implication that one part of the people of God is thus allying with a foreign nation in order to invade the other part of the people of God. और यहाँ पर शास्त्र पाठ में हम देखते हैं कि यशायाह इस बात पर गौर नहीं कर रहा है कि यहाँ यहोवा का एक राज्य उत्तरी राज्य विदेशी राजा अराम के राजा के साथ मदद के द्वारा वो यहोवा के दूसरे राज्य यहूदा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया है। But when Isaiah refers to Ephraim as Israel, the name that theologically unites Ephraim and Judah, ironically, he underlines the point. और परंतु जिस प्रकार से यहाँ पे शुरुआत में ही के आयत में इफ्राइम को जब वो इजराइल कहता है तब धर्म वैज्ञानिक रीति से वो दोनों राज्यों की बात वहां पर कर रहा है, ऐसे हम देख सकते हैं। The same point emerges in the description of the Judahite government as David's household. और दाऊद की सरकार जहां पर दाऊद के बेटे राज्य कर रहे थे, वहां पर जब दाऊद के घराने ये शब्द का उपयोग यहाँ पे हम पढ़ते हैं तब भी दोनों राज्य का उल्लेख है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। When Ephraim had made a unilateral declaration of independence from Jerusalem 2 centuries ago, it cut itself off from David's household as well as from the temple. और इसीलिए हम देखते हैं कि इफ्राइम ने जब आज से इस समय से 2 सदी पहले जब ये जाहिर कर दिया था कि वो अब यहूदा के साथ नहीं रहना चाहता है, तब भी से उन्होंने अपने आप को मंदिर से और दाऊद के घराने से अलग कर दिया था। It's now not merely ignoring David, but attacking his dynasty. और यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर केवल नकारना नहीं है दाऊद के घराने को, परंतु अभी दाऊद के घराने पर हमला करने की बात है। Isaiah's later reference to David's household, when Isaiah is addressing Ahaz himself, suggests that Isaiah's direct point lies somewhere else. और यहाँ पर जब आगे के समय के अंदर हम देखेंगे जब आहाज को सीधी रीति से यशायाह भविष्यवाणी करता है तब उसका जो मुद्दा है वो कुछ और है।
Isaiah is reminding Ahaz of his theological position. और यशाया जो है आहाज को अपनी खुद की धर्म वैज्ञानिक स्थिति के बारे में बताना चाहता है वहां पर। Ahaz isn't merely the king of a small Middle Eastern nation who needs to think practically and politically about policies for his people. क्योंकि यहाँ पर आहाज जो एक राजा है वो केवल कोई छोटे से देश का राजा नहीं है जिसे बस उस व्यवहार रीति से या फिर राजकीय रीति से अपने और अपने लोगों के बारे में और अपनी राज्य को कैसे करे वैसे सोचना है। Ahaz is the current head of David's household. और आहाज तो दरअसल में दाऊद के घराने का वर्तमान शीर है। He is the heir to God's promises to David and his successors. और ये तो प्रभु के वचन जो दाऊद के वंशों के लिए थे उसके लिए उसका ये वारिस है अभी। He has to live in the world, but to do so without implying that worldly considerations are the only ones to be taken into account. और उसे तो इस संसार में जीना है परंतु संसार की कोई भी चीजों का उस पर असर हो उससे उससे अपने आप को उसे अलग रखना है। It's always a tough aspect to a leader's position. और एक अगुवाई के अंदर जब आप हो तो अगुवे की परिस्थिति में हमेशा ये बहुत ही मुश्किल निर्णय रहते हैं। Isaiah underlines the point by referring to Pekah, the Ephraimite king, as the son of Remaliah, and to the man they want to put on the Judahite throne as the son of Tabael. We don't know his actual name. He doesn't और use यहाँ their पर own names. और यहाँ पर हम यशायाह को इस बात को स्पष्ट करते हुए देखते हैं कि जब वो पेका की बात करता है जो इफ्राइम का है जो रमालिया का बेटा है और उसके बाद दूसरा जो नाम लिखा गया है वहां पर जिस यहूदा के व्यक्ति को वहां पर वो रखना चाहते थे वो ताबील का बेटा था। वो बेटे का नाम हम जानते ही नहीं क्योंकि वहां पर उसका नाम का वर्णन ही नहीं किया गया है। They're not sons of David like Ahaz. और वो लोग दाऊद के पुत्र नहीं है आहाज के समान। Each king needs to be seen as the current representative of a dynasty. और यहाँ पर अभी यहाँ पर जिन भी राजाओं का वर्णन किया गया है वो उनके साम्राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे हमें यहाँ पे अभी देखना है। Ahaz is trying to be practical, checking out the city's water supply. और आहाज दरअसल में यहाँ पर व्यवहार होने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा है कि पूरे नगर के अंदर पूरे राज्य के अंदर सबको पानी मिल रहा है या नहीं। In a country such as his, people commonly built their cities on a hill, which was a good defensive position. और उसके समय के अंदर वहां के जो राज्य थे ज्यादा तौर पे वहां पर लोग जो है अपने शहरों को पहाड़ियों पे बनाते थे जिससे कि वो शत्रुओं से अच्छी रक्षा कर सके खुद की। But it meant that water supply was a problem. परंतु उसका मतलब ये भी था कि पानी की समस्या वहां पर बहुत होती थी। A besieging army could sit tight and wait till the city ran out of water. और कोई भी जो सेना उन पर हमला करना चाहती है वो ज्यादातर क्या करेगी वो नीचे ही रुकेगी और देखेगी कि शहर में पानी कब खत्म हो जाता है। So cities tried to safeguard and protect their water supply. Ahaz is out doing so. और यहाँ पर जो हर एक नगर है वो भी क्या करते थे ज्यादा तौर पे अपने नगर में ज्यादा से ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी वो लोग रखते थे ताकि कभी कमी ना हो। और यहाँ पर आहाज भी वही करने की कोशिश कर रहा है। It's the responsible thing to do. Isaiah doesn't say it's wrong, but he does warn Ahaz to avoid assuming that action like that is the key to surviving the expected siege. और यहाँ पर ये तो जिम्मेदारी वाला काम था। यहाँ पर यशायाह आहाज को ये करने से मना नहीं कर रहा है परंतु यहाँ पर आहाज जो कह रहा है वो ये था कि उसे केवल ये करके ये नहीं मानना चाहिए कि आने वाला जो हमला है वो रुक जाने वाला है। The decisive fact is that Yahweh has made a declaration about what will happen to Syria and Ephraim, their capitals and their kings. और यहाँ पर जो मूर्ण निर्णायक जो बात है वो ये है कि यहोवा ने अपनी घोषणा कर दी है कि इफ्राइम के साथ और आराम के साथ क्या होने वाला है उनके राजाओं के साथ और उनके मुख्य नगरों के साथ क्या होने वाला है। They are not Israel in the theological sense. Their capitals are not Jerusalem, and their kings don't belong to David's household. और धर्म वैज्ञानिक रीति से वे इजराइल नहीं है। अगर आगे देखे तो वो यरूशलेम उनका मुख्य नगर नहीं है और उनके राजा भी दाऊद के घराने के नहीं है।
Ephraim is on the verge of obliteration. It fell to Assyria a decade later. The 65 years looks like an allusion to an event referred to in Isaiah chapter 4. और यहाँ पे जो 65 सालों का वर्णन किया गया है वो शायद एजरा 4 के अंदर हम देख सकते हैं कि वो दरअसल में होता है कि जब इफ्राइम जो है वो अशूर के हाथों गिरता है और वहां पर उनके हाथों उनकी हार होती है. Judah's job is to stand firm in trust in Yahweh if he wants to stand firm as a people. और यहाँ पर यहूदा का कार्य यह है कि वो स्थिर खड़ा रहे, यहोवा पर भरोसा रखे यदि वो सचमुच में स्थिर खड़ा रहना चाहता है तो. Isaiah uses two forms of the same verb in order to make the point about the connection between two forms of standing firm. और यहाँ पर यशाया भी जो है दो प्रकार से स्थिर खड़े रहने के लिए दो अलग-अलग प्रकार के हिब्रू क्रियापद शब्दों का उपयोग करता है. They have to stand firm in trust in Yahweh if they want to stand firm as a people. और यहाँ पर वो शब्द ये कहता है कि अगर उन्हें स्थिर खड़ा रहना है तो यहोवा पर भरोसा रहकर उन्हें स्थिर खड़ा रखने का प्रयत्न करना है. But then Yahweh goes on to talk about the young woman in the passage that Christians are familiar with. और यहाँ पर फिर यशाया जो है वो एक युवती के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम सब मसीही लोग के जानते हैं. Yahweh spoke further to Ahaz. और यहोवा ने आहाज से कहा, Ask for yourself a sign from Yahweh your God. तुम यहोवा अपने परमेश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो. Make it deep to Sheol or make it lofty up to the heights. चाहे वह गहरे सागर का हो या फिर आकाश का. Ahaz said, I won't ask. I won't test Yahweh. परंतु आहाज ने कहा कि मैं नहीं मांगूंगा, मैं यहोवा को नहीं परखूंगा. Isaiah said, Will you listen, household of David? परंतु यशाया ने कहा कि हे दाविद के घराने सुनो. Is it too small for you, wearying human beings, that you weary my God as well? और क्या तुम्हारे लिए लोगों के धैर्य की परीक्षा लेना काफी न था कि अब तुम मेरे परमेश्वर के धैर्य को भी परखोगे? Therefore, my Lord, he will give you a sign. और इसीलिए अब यहोवा मेरा परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा. There, a girl is pregnant and is going to give birth to a son, and she will call his name, God is with us. और सुनो, एक कन्या गर्भ धारण करेगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसे यहोवा साथ है, इमानुएल, ये नाम से पुकारेगी. He will eat yogurt and honey in knowing how to reject what is evil and choose what is good. और बुरे को अस्वीकार करने तथा भले को अपनाने की समझ होने तक वह मक्खन और शहद खाएगा. Because before the boy knows how to reject what is evil and choose what is good, the land whose two kings you're terrified of will be abandoned. क्योंकि बालक को बुरे को अस्वीकार करने तथा भले को अपनाने की समझ होने से पहले जिन दो राजाओं से तुम डर रहे हो उसे निर्जन कर दिया जाएगा. Yahweh will bring upon you and upon your people and upon your father's household days that have not come since the day Ephraim turned away from Judah, the king of Assyria. और यहोवा तुम पर, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे पूर्वजों के वंश पर ऐसा समय लाएंगे जैसा उस समय से जब अश्शूर के राजा के समय में इफ्राइम यहूदिया से अलग न हुआ था, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ था. So it's in connection with that political crisis that Yahweh offers Ahaz a sign. तो इसलिए यहाँ पर उस राजकीय समस्या के तौर पे, उस संघर्ष के तौर पर यहोवा जो है आहाज को एक चिन्ह दे रहे हैं. You have to admire Ahaz for the theological correctness with which he seeks to evade receiving a sign. और यहाँ पर हमें दरअसल में आहाज की सराहना करनी चाहिए कि किस प्रकार धर्म वैज्ञानिक रीति से वो सही है कि वो यहोवा से चिन्ह की मांग नहीं कर रहा है. Sometimes God disapproves of people who want signs, but sometimes God grants signs. काफी बार जो लोग चिन्ह मांगते हैं परमेश्वर उन लोगों को चिन्ह नहीं देता है, परंतु काफी बार परमेश्वर चिन्ह देता है. Maybe there's a difference between people who want to believe but need help
and people who don't want to believe and want an excuse for avoiding believing. Ahaz शा- comes in the latter category. शायद यहाँ पर एक प्रकार का अंतर है ऐसे लोगों में कि जो लोग चिन्ह चाहते हैं और विश्वास करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों में कि जो लोग चिन्ह नहीं चाहते हैं और विश्वास नहीं करना चाहते हैं। आहाज दूसरे प्रकार के वर्ग में आता है यहाँ पर। Ahaz comes in the latter category. He wants an excuse for avoiding believing. और यहाँ पर आहाज दूसरे वर्ग में आता है क्योंकि वो एक प्रकार का बहाना ढूंढना चाहता है ताकि वो कार्य ना करे। The sign involves a girl having a baby. और यहाँ पर जो चिन्ह है वो ये है कि कुंवारी गर्भ धारण करेगी। Isaiah's words may mean a virgin will get pregnant, और यशाया के शब्दों का मतलब ये हो सकता है कि कुंवारी गर्भ धारण होगी। but if so, he doesn't imply that the birth itself is going to be a miracle. परंतु वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा है कि वो जन्म स्वयं ही एक चमत्कार होगा। If she is at the moment a virgin, she will be an unmarried girl who is going to marry and conceive in the usual way. यदि वो उस समय एक कुंवारी होगी, यदि वो उस समय एक कुंवारी होगी, इसका मतलब यह है कि वो उस समय बिन विवाहित होगी, जो आगे जाके शादी करने वाली होगी और गर्भधारण साधारण रीति से करेगी। We don't know who the girl is. Indeed, Isaiah doesn't need to have a particular girl in mind. और हमें यह भी नहीं पता कि किस कुंवारी लड़की की बात की गई है, या शायद यशाया के मन में भी वो कौन सी लड़की है उसकी बात नहीं है। The point is that by the time a few months have passed and the girl has had her baby, the crisis that preoccupies Ahaz will be over. जो मुद्दा है मुख्य वो ये है कि जिस लड़की की वहां पर बात की गई है, कुछ महीने बीतने के बाद जब वो बच्चा पैदा कर देगी, तब ये जो आहाज के साथ जो ये भी मुश्किल समय है वो खत्म हो जाएगा। It will have proved that God is with us, and she will be able to call her baby God is with us, Emmanuel. इसका मतलब ये साबित करेगा कि यहोवा हमारे साथ है, और वो अपने बच्चे को भी इस प्रकार कह पाएगी कि यहोवा मेरे साथ है, इमानुएल। The comment about him eating baby food and being able to recognize food he likes and food he doesn't like then nuances the point. फिर यहाँ पे जो आगे मुद्दा है इस बात को और सराहना देता है, जहां पर लिखा गया है कि वो खाना खाएगा, बच्चों का खाना खाएगा और समझ पाएगा कि उसे कौन सा खाना पसंद है और कौन सा खाना नहीं पसंद है। Hundreds of years later, Jesus came and was born of a girl who was a virgin when she conceived. और काफी सालों बाद, काफी सदियों बाद यीशु मसीह भी एक ऐसी कुंवारी से जन्म लेते हैं कि जब वो कुंवारी थी जब यीशु मसीह को जना गया उनके अंदर। And her baby turned out to be God is with us in a more personal sense. और फिर उस कुंवारी का बेटा हमारे लिए परमेश्वर हमारे साथ है ऐसा साबित हुआ बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे। And Matthew can utilize the words in Isaiah to help his Christian readers understand something of the wonder of that event. और यहाँ पर मत्ती भी जो है यशाया के इस व्याख्यान का उपयोग अपने मसीह पढ़ने वालों के लिए अच्छे से उस प्रस्तुत करता है ताकि वो समझ सके कि ये जो घटना अभी घड़ी है यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म की, वो कितनी महत्वपूर्ण है। I once received a call from a Jewish lawyer in Los Angeles who had published a book called 26 Reasons Why Jews Don't Believe in Jesus. एक बार मुझे एक फोन आया एक यहूदी वकील का जो लॉस एंजलिस में रहते थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का शीर्षक था 26 कारण कि क्यों यहूदी यीशु में विश्वास नहीं करते। He wanted me to make sure that his statements about Jesus and about Christian faith were accurate. वे चाहते थे कि मैं पुष्टि उनको करके दूं कि उनके वाक्य जो उस पुस्तक में लिखे थे यीशु मसीह के बारे में या फिर मसीह विश्वास के बारे में वो सही थे। A significant part of the book concerned the way Christians use texts from the Old Testament to prove that Jesus is the Messiah. But they introduce a new meaning into the texts in doing so. और उस पुस्तक का जो मुख्य विषय था वो ये था कि वो मसीह जिस प्रकार से पुराने नियम का उपयोग करते हैं उनके यीशु मसीह के मसीहा के तौर पे स्वीकारने के, उसका सही मतलब क्या है। परंतु मसीह लोग क्या करते हैं, एक नया अर्थ उसमें डालते हैं, अपना खुद का अर्थ। I got in trouble with a number of Christians for acknowledging that he was right.
और मैं बहुत सारे मसीही लोगों के साथ बहुत ही मुश्किल में, जब मैं बात कर रहा था तब मुश्किल में पड़ा, क्योंकि वो जो कह रहा था उस पुस्तक में वो सही था। The New Testament uses the prophets to help people who believe in Jesus to understand aspects of their confession that Jesus is the Messiah. कि नया नियम जो है पुराने नियम के नबियों के बातों का उपयोग अपने लोगों को समझाने के लिए करता है कि यीशु मसीह उनका मसीहा है। But the New Testament isn't writing to people who don't believe in Jesus in order to prove from the prophets that he is the Messiah. परंतु नया नियम जो है वो ऐसे लोगों के लिए नहीं लिखता है कि जो यीशु मसीह में मानते नहीं है, ताकि वो भी नबियों में से साबित कर सके कि मसीहा वही है। The passage about a virgin conceiving and having a son who will be called Emmanuel, which Matthew takes up, is a parade example. और इसीलिए मत्ती जिस प्रकार से कुमारी के गर्भ धारण की बात करती है, वो शास्त्र पाठ जब वो लेता है मत्ती अपनी लिखी में, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है उसके लिए। The sign will do Ahaz no good because of the attitude he brings to it. और ये जो चिन्ह है वो आहाज के लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि एक अलग ही प्रकार के वलन के साथ वो वहां पर आ रहा है। The Assyrians, who will devastate Syria and Ephraim, will also invade Judah. और ये अशूरी लोग जो आराम और इफ्राइम को हराएंगे, वो आगे जाके यहूदा को भी हराएंगे। It's one implication of the name of the son that Isaiah takes with him when he confronts Ahaz. और ये एक और लागूकरण है कि जिस बेटे का वर्णन वहां पर किया गया है, यशायाह उसके साथ लेता है कि जब वो आहाज से बातचीत कर रहा है तब। The name could be a promise that only the remains of Assyria will return home. और ये नाम शायद एक वचन भी हो सकता है कि सिर्फ अशूर के बचने वाले उसे घर वापस ले जाएंगे। But it could be a warning that only the remains of Judah will survive. परंतु यह एक चेतावनी भी हो सकती है कि केवल और केवल यहूदा के थोड़े लोग बच जाएंगे। It could also imply that at least some remains of Judah will survive. और इसका मतलब ये भी शायद हो सकता है कि थोड़े बहुत ही शायद यहूदा के लोग बचेंगे। It could be a call to people to separate themselves from the stance of the people as a whole. The remains must return to the Lord. और यहाँ पर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, लोगों को ये भी बुलाहट यहाँ पर दी गई हो सकती है कि अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करें, कि ताकि जो बचे हुए लोग हैं वो यहोवा की ओर वापस मुड़े। You have to work out what it signifies in light of who you are. और आप जो है उसके प्रकाश में उसका मतलब आपको खुद ढूंढना चाहिए यहाँ पर। Now here's another passage in Isaiah chapter 9 that Christians read at Advent and at Christmas because it helps us understand the significance of Jesus. और यहाँ पे एक और शास्त्र पाठ है जो यशायाह 9 में है, जो मसीही लोग बड़े दिन मतलब नाताल की मनाने के समय में उसका उपयोग करते हैं, कि जो मसीह के महत्व को समझाने में मदद करता है। As the earlier time has humiliated the country of Zebulun and the country of Naphtali, यद्यपि दुख के समय हटेगा, पहले उसे ज़बूलून और नफ्ताली से घृणा की थी। the later one has honored the way of the sea, the other side of the Jordan, Galilee of the nations. किंतु भविष्य में वह समुद्र के रास्ते यरदन से उस पार अन्य जातियों को गलील प्रवेश सम्मानित किया जाएगा। The people walking in darkness have seen great light. Those living in deathly gloom, light has shone on them. अंधकार में चल रहे लोगों ने एक बड़ी ज्योति को देखा, गहन अंधकार के निवासियों पर ज्योति चमकी। You have made the nation many. You have given it great joy. They have rejoiced before you, like the rejoicing at harvest, like people who celebrate at the dividing of plunder. जैसे फसल कटनी के समय आनंदित होती है और जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन होते हैं, वैसे ही तूने अपने जाति को बढ़ाया और आनंदित किया। Because the yoke that burdened it, the rod on its shoulder, the boss's club over it, you have shattered as on the day at Midian. क्योंकि परमेश्वर ने उनके जुए और भारी बोझ को दूर किया जो मिदियन के द्वारा दिया गया था। Because every boot of someone trampling with a roar and the coat rolled in blood have been for burning, consumed by fire.
युद्ध में लड़ने वाले सैनिक का जूता और खून से भरे हुए कपड़े जला दिए जाएंगे। Because a child has been born to us, a son has been given to us, and government has come upon his shoulder. क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र जन्मा हुआ है, प्रभुता उसके कंधों पर है। People have called him an extraordinary counselor is the warrior God. The everlasting Father is an official for well-being. और उस और उसका नाम होगा अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अनंत काल का पिता। Of the growing of government and of well-being there will be no end on David's throne and on his reign, to establish and support it with authority and faithfulness from now and forever. The passion of Yahweh armies will do this. और शांति का राजकुमार होगा दाविद के सिंहासन और उनके राज्य पर, उनका अधिकार तथा उनकी शांति का अंत न होगा। इसलिए दाऊद की राजगद्दी हमेशा न्याय और धर्म के साथ स्थिर रहेगी। My Lord has sent out a word against Jacob, and it has fallen on Israel. यहोवा ने याकूब के पास एक संदेश भेजा जो इज़राइल पर पूरा होगा। But the people, the entirety of it, acknowledge it, Ephraim and the inhabitants of Samaria, with loftiness and big-headedness. यह इफ्राइम और शमरी के सभी लोगों को मालूम हो जाएगा, जो घमंड और कठोरता से बोलते हैं। Bricks have fallen, but we will build with stone. Sycamore figs have been cut down, but we will put cedars in their place. ईंटें तो गिर गई हैं, लेकिन हम गिरे हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुल्लर वृक्ष तो काट दिए गए हैं, तब हम उनके स्थान पर देवदार उगाएंगे। But Yahweh has lifted high the adversaries of Rezin over it and spurred on its enemies. तब यहोवा रेजिन की ओर से उसके विरुद्ध शत्रु खड़े करेंगे और उसके अन्य शत्रुओं को उकसाएंगे। Syria from the east, the Philistines from the west, and they have devoured Israel with open mouth. और पूर्व से आरामी और पश्चिम से फिलिस्तीनी जो मुंह खोलकर इज़राइल को निगल जाएंगे। For all this, his anger did not turn, his hand was still stretched out. यह सब होने पर भी उनका क्रोध शांत न होगा और उनका हाथ उठा रहेगा। For the people of Judah, when people have experienced darkness and defeat and oppression, the birth of a new son in the royal household is a sign of hope. और यहूदा के लोगों के लिए कि जब लोगों ने अंधकार का अनुभव किया है, हार का अनुभव किया है, दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, तब राजघराने के अंदर एक नए पुत्र का जन्म होना ये एक आशा का चिन्ह है। The opening of what we read mostly speaks of God's act of restoration as if it's already passed. और यहाँ पर जो शुरुआत के शब्द हमने जो सुने इस अध्याय के अंदर, वो यहोवा के कृत्य थे जो पुनर्स्थापना करने के लिए थे, और ऐसे बताए गए जैसे वो हो चुके हैं। But the restoration hasn't happened in Isaiah's day, so it likely speaks by faith of what Isaiah knows God is going to do. परंतु वो पुनर्स्थापना तो यशाया के दिन में अभी तक हुई नहीं है, इसलिए जब यशाया ये कह रहा है तब विश्वास से वो कह रहा है, क्योंकि इसे यहोवा पर विश्वास है कि वो यही चीज यहोवा करने वाले हैं। Isaiah can speak as if the events have happened because they have already begun. और यशाया इस प्रकार से कह सकता है कि वो घटनाएं हो चुकी है, क्योंकि वो घटनाओं का परिपूर्ण होना शुरू हो गया है। It's a common feature of the way scripture works. और प्रभु के वचन किस प्रकार कार्यरत रहते हैं, इसका ये बहुत ही साधारण ऐसी रीति है। ये The event that has actually happened is the birth of a son to the king, perhaps the birth of Hezekiah to Ahaz. और यहाँ पर जो घटना हुई है वो ये है कि राजघराने में एक पुत्र का जन्म हुआ है, और उस समय शायद हिजकिय्याह राजा की बात लिखी गई है। People would look back to his birth as a significant moment, given his greatness as a reformer and as one who saw the Lord marvelously preserve Jerusalem from falling to Assyria. और जब लोग हिजकिय्याह राजा के जन्म के पीछे देखेंगे, उस घटना को याद करेंगे, तब समझेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि ये उसकी महानता दिखाती है हिजकिय्याह राजा की, जो एक बदलाव युक्त राजा बना और उसने देखा कि यहोवा ने किस प्रकार से यरूशलेम को अश्शूरियों के हाथ गिरते हुए बचाया है। So anyway, this son has that complicated name,
और इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस बेटे का ये थोड़ा उलझा हुआ नाम है। The name is An Extraordinary Counselor is the Warrior God. The एक Everlasting Father is an Officer for Well-being. एक अद्भुत युक्ति करने वाला जो एक लड़ने वाला परमेश्वर है, और उसके साथ साथ एक अनंतकालिक पिता, ये एक ऐसा अधिकारी है जो अच्छा चाहता है। It's like earlier names in Isaiah, like God is with us, remains will return, plunder hurries, loot rushes. The name is a sentence. और यहाँ पर ये यशाया के आगे जिस प्रकार से वो नामों को लिखता है, उसी प्रकार से जैसे हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ है, या फिर बचे हुए वापस आएंगे, या फिर जो लूट है वो सब बाहर दौड़ रही है, और इसके नाम का मतलब एक वाक्य होता है यहाँ पर। None of these names are the person's everyday name, as when the New Testament says that Jesus will be called Emmanuel, God is with us, without meaning that this expression is Jesus' actual name. और इनमें से एक भी नाम किसी भी व्यक्ति के रोजिंदा नाम नहीं है, क्योंकि हम नए नियम में भी जब देखते हैं कि यीशु मसीह को जब इमानुएल कहा गया है, यहोवा हमारे साथ है, इसका यीशु नाम में कोई मतलब नहीं होता है। Rather, the person somehow stands for whatever the name says. और उसके विपरीत हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति को यह नाम दिया जाता है, वो दरअसल में इस वाक्य के वर्णन के साथ खड़ा रहता है, उसका जीवन इस प्रकार चलता है। God gives him as a sign of the truth of the expression that's attached to him. परमेश्वर जो है उसे ये चिन्ह देता है उनकी सत्यता के बारे में, कि ये उसके नाम के साथ ये जो हकीकत है, ये इसके जीवन की भी हकीकत होने वाली है। The names don't mean that that baby in Isaiah is God with us, or is the remains, or is the plunder. And likewise, this new name doesn't mean the child is what the name says. और यहाँ पर यशाया में जो नाम लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जन्मने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर हमारे साथ है, या फिर वो बचे हुए लोग हैं, या फिर वो वो लूट है। उसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि ये जो नया नाम है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चा वो है जो ये नाम कह रहा है। Rather, he is a sign and a guarantee of it. उसके विपरीत हम ये देखते हैं कि दरअसल में वो जो बच्चा जन्मने वाला है, वो आने वाली चीज की एक चिन्ह है, या फिर एक पूर्णावती का एक निशानी है कि ये होगा। It's as if he goes around bearing a poster board, a billboard with that message, and with the reminder that God commissioned the billboard. इसका मतलब तो शायद ये हो सकता है कि ये जो बच्चा है, ये अपने साथ अपने ऊपर कुछ लिखी को लेके जा रहा है, और वहां पर वो कह रहा है, वहां पर संदेश लिखा है कि ये परमेश्वर ने लिखा हुआ सब चीजें है। The name makes some declarations about God. ये कुछ नाम है जो यहोवा के बारे में कुछ घोषणाएं कर रहे हैं। The warrior God is an extraordinary counselor or planner. ये जो लड़ने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। That is, Yahweh is expert at determining what the future should bring and seeing that it does so. और इसका मतलब ये है कि यहोवा जो है वो बहुत ही निष्णांत है, बहुत ही तज्ञ है समझने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, और वो जानते हैं, और वो चाहते हैं कि ये चीज हो उसी प्रकार से। And Yahweh is capable of making plans that bring about events that one would never have guessed. और यहोवा इस बात के लिए भी बहुत ही सक्षम है कि अपनी आयोजनों को, अपनी योजनाओं को इस प्रकार से घटनाओं में गढ़े कि कोई समझ भी नहीं पाएगा कि क्या चीज कैसे हो गई। Further, the everlasting Father is an officer who brings well-being. और आगे हम देखते हैं कि जो अनंत काल का पिता है, वो एक ऐसा अधिकारी है जो अच्छे समय को लाता है। Isaiah chapter 1 bemoaned how the children have disdained their father and they have paid for it. और यशायाह 1 में लिखा है कि इस प्रकार से बच्चों ने अपने पिताओं की आज्ञा का उल्लंघन किया है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। But their father isn't finished with them. परंतु उनके पिता ने उनको छोड़ नहीं दिया है। The Hebrew word for an officer often denotes an army officer, which links with the description of Yahweh as the warrior God.
और यहाँ पर हिब्रू शब्द जो अधिकारी के लिए लिखा गया है वो दरअसल में एक सेना में के अधिकारी के बारे में है, और वो यहाँ पर यहोवा को एक लड़ने वाले परमेश्वर या फिर एक योद्धा परमेश्वर के साथ जोड़ता है। In this context, Isaiah uses the word shalom, और यहाँ पर इस संदर्भ में यशायाह शालोम शब्द का उपयोग करता है, and shalom will include the idea of peace, but the word commonly has the broader meaning of well-being. और शालोम दरअसल में अब साधारण तौर पर देखें तो शांति की बात की गई है, परंतु यहाँ पर अगर आप उसका बड़ा संदर्भ आप समझे तो वहां पर अच्छे समय की बात की गई है, किसी के साथ अच्छा हो। Shalom means life as a whole going well, and this prospect is what the child's name promises Judah. और शालोम का यहाँ पर अर्थ होता है कि जीवन अच्छे से बीते, और यहाँ पर ये बच्चे का नाम जो है वो इस अच्छे जीवन की वचन, जो अच्छे जीवन का वचन यहूदा को दे रहा है। So this child's birth is a sign that God will restore his people. और इसका मतलब है कि ये बच्चे का जो जन्म है ये एक चिन्ह है कि यहोवा अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे। As David exercised government with faithfulness, so this child will, unlike his father. और यहाँ पर जिस प्रकार से दाऊद ने अपनी जो राज्य है वो बहुत ही विश्वासु रह के परमेश्वर से किया है, राज किया है, उसी तरह से उसका बेटा, ये जो बेटे की बात की गई जो जन्म लेने वाला है, वो अपने पिता से विपरीत दाऊद के समान राज्य करेगा। Remarkably, Isaiah starts from the restoration of Ephraim, that the far northern clans of Zebulun and Naphtali. और बहुत ही चौंका देने वाली बात यह है कि यशायाह जो है वो इफ्राइम की पुनर्स्थापना से शुरू करता है, सबसे उत्तरीय जो वंश थे, जो जबूलून और नफ्ताली। And he talks about the Mediterranean region, the northeastern area across the Jordan and Galilee. और फिर उसके बाद वो दूसरी जगहों के नाम लिखता है जहां पर फिर वो उत्तर पूर्वी विस्तारों में, जब यरदन नदी के पार की जो जगह है या फिर गलील है। The birth of a new son to David's household underwrites the future of Israel as a whole. और यहाँ पर दाऊद के घराने में एक नए बेटे के जन्म से इजराइल के संपूर्ण भविष्य की वहां पर बात की गई है। In his mind's eye, Isaiah can see light dawning over the whole land. और अपने मन की आंखों के अंदर शायद यशायाह को पूरे उस जगह के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर रोशनी प्रकाशती हुई दिख रही है। It's light that contrasts with the darkness of which chapter 8 as a whole spoke. और 8वें अध्याय के अंदर जिस अंधकार की बात की गई है उससे विपरीत, इससे विरोधाभासी ये प्रकाश है जो उसके ऊपर गिर रहा है अभी। He can see the Assyrian yoke broken, see the Assyrian army turning tail, as chapters 36 to 37 will describe. जिस प्रकार से यशायाह 36 और 37 में दिखाया जाएगा कि किस प्रकार अशूरियों का जो बोझा है वो टूट चुका है और किस प्रकार उसकी सेना ने पीठ दिखाई है, वो देख रहा है अभी वो यशायाह, यहाँ पे यशायाह 9 के अंदर, 8 के अंदर। The book of Judges recounts the deliverance from Midian. और न्यायाधीशों के पुस्तक के अंदर मिदियानियों से हमें किस प्रकार छुटकारा दिया है वो लिखा गया है। And this one will be like that. और ये छुटकारा भी उसी प्रकार से होने वाला है। Neatly, Jesus started his preaching in the north. और स्पष्ट रीति से हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपना प्रवचन करना जो है वो उत्तरीय राज्य से शुरू किया। So Matthew 4 can look at Jesus' ministry in light of Isaiah's vision that we read just now. और अभी जिस प्रकार से हमने यशायाह का दर्शन देखा, वो दर्शन को मत्ती 4 भी यीशु मसीह के सेवकाई के प्रकाश में देख सकती है। Jesus hasn't yet brought about the fulfillment of this entire vision any more than Hezekiah did, but he was another sign and guarantee that God will bring about its fulfillment. और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी ये पूरे दर्शन की पूर्णाहुति नहीं की है, और इसी प्रकार से हिजकिय्याह ने भी नहीं की थी, परंतु ये एक और चिन्ह है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि यहोवा जो है अपनी बातों का, अपनी पुनर्स्थापना का पूर्णाहुति लाएंगे, संपूर्ण करेंगे उसे। And he was a more compelling sign. Jesus wasn't merely wearing a billboard, he embodied the message of the billboard.
और यहाँ पर ये यीशु मसीह जो है वो बहुत ही पृष्ठ और हमारे लिए बहुत ही विश्वसनीय ऐसा चिन्ह है, क्योंकि यीशु मसीह केवल वैसे व्यक्ति नहीं थे जो संदेश को अपने ऊपर लेके आए थे, परंतु यीशु मसीह खुद वो संदेश थे कि जो यहोवा की परिपूर्णता, यहोवा की पुनर्स्थापना की बात वहां पर है। Thank you. प्रभु आप सबको आशीष दे।